اچھا میں کہہ رہا چلیے تھا ابھی جو انیس حنفی صاحب تھے نا، ایک مغالطہ دے گئے وائل بن حجر والی روایت، انہوں نے صحیح کہہ دی، جبکہ اس میں محمد بن اسماعیل پر تو جرا ہے بہت زبردست والی. آواز آ رہی ہے میری؟ آواز آ رہی ہے جی. آپ کا سوال آ گیا جی شیخ. آپ کا سوال مکمل ہو گیا. ہم سمجھ رہے تھے آپ اچھا بات کر یہ رہے ہیں میرا کچھ سوال بول رہے نہیں تھا، نہیں میں تو بات تکلیف پہ کرنا آیا تھا، میرا ٹاپک تکلیف ہے. کریں گے کیونکہ آپ نے ذکر کر دیا نا، تو ذرا یہاں بھی سن نہیں لیتے ہیں وہ استاد. اصل میں وہ جو جھوٹ بول کے گئے تھے میں نے اس پہ کرا تھا نا، اور جو ہے اس پہ یعنی سینے پہ ہاتھ باندھنے والی کی تو کوئی صاف روایت ابھی تک تو ہے نہیں. ہو تو ہمیں بھی پیش کر دینا، ہم بھی عمل کر لیں گے. صحیح سند کے ساتھ ہمیں بالکل دے دینا لفظ سینے پہ ہاتھ، ٹھیک ہے؟ تو وہ بالکل اگلی بالکل اسٹیم میں دے شیخ دیے، میرا کفایت میں سوال لے آپ لیا. جو بات کر رہے ہیں نا بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، کیونکہ شیخ کفایت اللہ نے اس موضوع پہ پوری کتاب لکھی ہے الحمدللہ. تو اب وہ بہت بھیج آسانی سے دیے گا، انشاءاللہ آپ میں دیکھ لیں گے. جی لیکن کہ مغالطہ لائف اویلیبل ہے، پی اسٹریم ڈی میں ایف دینے سے اویلیبل ہے اچھا نہیں آن رہتا ہے. لائن. لیکن کیونکہ آپ نے ابھی پوچھا ہے نا، تو کیوں نہ ہم ابھی اس تعلق سے شیخ سے ریکویسٹ کرتے ہیں. شیخ اگر آپ ان کے سوال کا جواب نہیں دیں میں گے تو ٹاپک اصل میں تکلیف ایکچولی میں میں جانتا ہوں، لیکن کیونکہ آپ اصل نے میں تو آپ کو پھر یہ موضوع پہ بات ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. جب آپ بات کر نہیں لیے نہیں نا میں تبھی نے کچھ اصل میں بڑھتا ہے. انیس حنفی بھائی، اصل میں انیس حنفی اب بھائی میران جو بھائی ہے کہتا وہ ہے نا کہ مغالطہ آپ دے بات رہے تھے کرو، نا. پھر یہاں سے جواب بھی تو جانا ضروری ہے نا. جب آپ نے کوئی بات کہی ہے آج ابھی اس ابھی مسئلے پہ، ایک لائن میں جواب دے دیے، پھر کبھی انشاءاللہ اس پہ بات کر کیا لیں گے. مسئلہ ہے نا کہ کبھی کبھار ایک لائن میں بھی آ بھائی جائے گا، جیسے کبھی ہو سکتا ہے اس سے لمبا بھی جواب انیس ہوگا. صاحب کو آپ بول رہے ہیں کہ انیس صاحب نے مغالطہ کر دیا، تو اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جواب دینا ضروری ہے. تو آپ مغالطہ دیں ہماری اسٹریم میں، تو ہم جواب نہ دیں. کوئی اور آپ کے حساب سے مغالطہ دیکھ کر آئے تو آپ اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں کہ آپ جواب دیں گے. نہیں نہیں ریلیکس کرو سب لوگ انشاءاللہ. ابھی پہلے ایک سوال کا جواب دیکھیں. جی شیخ کفایت آپ کی مائک ویک آ رہا ہے، تھوڑا آواز کم آ رہی ہے شیخ آپ ایک کی. لائن میں جواب دوں تو آپ ہی کی طرح کہہ سکتا ہوں میں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر بہت زبردست جرے ہوئی ہے. ایک لائن میں جواب ہے یہ. آپ نے کہا کہ محمد بن اسماعیل پر بہت جرے ہوئی ہے. نہیں اس سے آپ ایک بات امام، ابھی آپ نے کہا امام ابو حنیفہ تو جو آپ سنیں، ابھی آپ نے کہا بیچ میں شیخ مت آپ کی بولیں. آواز بہت کم آ رہی ہے شیخ کفایت، آج میں بہت یہ کم کہہ آ رہا رہی ہوں ہے. ابھی آپ نے کیا کہا تھا، ابھی ذرا دہرا دیں. آواز آ رہی میری؟ ہاں آ رہی ہے آواز آ لیکن رہی ہے. بہت کم آ رہی ہے جی. ہاں انہوں نے کہا کہ معمل بن اسماعیل پر بڑی خطرناک جرے ہوئی. اس سے زیادہ خطرناک جرح امام ابو حنیفہ رحم اللہ پر ہوئی ہے. اس سے زیادہ خطرناک جرح. ہم کیا آپ کریں بھائی؟ ثابت کریں، آپ ثابت کریں گے شیخ. نہیں آپ نے اعتراض کیا نا جی، ایک لائن میں جواب. آپ کہتے تھے ایک لائن میں جواب دو. نہیں ایک ایک لائن میں لائن نہیں، میں ہمیں جواب دے. میں نہیں 70-80 آپ محدثین نے سے ثابت کر دوں گا محمد ارے بن تو ہمیں اسماعیل پر جرا، میں ثابت کر سنو میری دوں گا بات نا. سنو. میری بات اصول سنو. ارے حدیث ہم پہ نہیں ثابت کریں گے. ہاں ہمارے پاس نہیں دلیل، ہم ایسے ہوا میں بول رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ محمد بن اسماعیل پر جو جرح ہوئی ہے اس کو اکٹھا کرتے ہوئے میری معلومات میں ابھی تک کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. میری کتاب میں تو سب میں نے اکٹھا کر دیا جو بھی جرح ہے. محمد بن اسماعیل پر جتنی جرح ہے اور جتنی توثیق ہے دونوں ہم نے اکٹھا کر لیا. امام ابو حنیفہ رحم اللہ پر جتنی جرح وہ بھی اکٹھا ہے. نشر الصحیفہ نام کی پوری کتاب موجود ہے. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بول کے کہ بڑی خطرناک شیخ جرح ہے. اگر آپ کو امام ابو نہیں آپ حنیفہ پہ بیچ میں نہ بات بات کرنی کریں ہے، میران بھائی، ذرا شیخ کو مکمل کرنے دیں. آپ درمیان میں نہ بات کریں. 2 منٹ رک جائیں، شیخ ختم کر لیں، پھر آپ کو میں موقع دوں گا انشاءاللہ. جی بتائیں. نہیں چلو میں ختم کر دیتا ہوں. امام ابو حنیفہ کے انداز میں ختم کر دیتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر ان سے بھی زیادہ خطرناک جرح ہے. چلو اب بولو آپ کو کیا بولنا ہے. چلو ختم کر دیا ایک لائن میں. جیسے آپ نے ختم کیا میں نے بھی ختم کر دیا. آپ ثابت کریں نا، حوالے دینا کسی. ایک لائن میں اصول میرا بھی محدثین میں ایک شیخ ایک میری لائن بات میں سن جواب. دیکھیے شیخ، پھر آپ بولنے نہیں دیتے میرے ٹائم میں، ہاں مجھے شیخ بولنے بولیے دیں. بولیے. میران بھائی جی بولیے بتائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں، نہیں ایک میں منٹ یہ سن کہہ رہا لیتے ہوں، ہیں. دیکھیے شیخ آپ نے یہ کہا کہ ان پہ بہت خطرناک جرح. تو محدثین کا اصول ہے کہ جب ہم محدثین کے اصول میں دیکھتے ہیں کہ سب زیادہ تعداد جس کی طرف ہوتی ہے اسے سچا مانا جاتا ہے. میں کم سے کم 100 سے زیادہ محدثین سے امام ابو حنیفہ کی توثیق ثابت کر دوں گا. آپ 100 سے زیادہ محدثین سے محمد بن اسماعیل کی توثیق ثابت کر دیں گے. جبکہ مجھے یہ میرا آئیڈیا یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ پہ 10 سے زیادہ بھی لوگوں نے گرا نہیں کی ہوگی. باتیں کرو. 100 تو بہت دور ہے. 100 تو بہت دور ہے. صرف 3 ثابت نہیں کر سکتے. 100 تو بہت دور ہے. نہیں امام میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی امام ابو حنیفہ کی، دیکھو چلیے میں یہ ابھی حوالے پڑھنے شروع کر دیتا ہوں. صرف آپ 100 کی نہیں چاہیے ہم کو 100 نہیں چاہیے. آپ میں بھی صرف حوالہ 3 پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. مجھے اچھا 10 نہیں منٹ میں میران بھائی، 100 ذرا نہیں، شیخ کو ہے نا 100 بہت میران زیادہ بھائی ہے. ریگولر ہلکا فالو کر کرو. کے بول رہا ہوں. آپ جاؤ ہوم ورک کر کے آؤ، تیاری کر کے آ جاؤ. صرف 3 توثیق ثابت کر دو. 3
मैं 30 मिनट में 80 से साबित कर देता हूँ, आप अभी मुझे 10 मिनट दे दें बस। क्या हवा में हमें 30 ना 10 हल्का मिनट, बोलने 10 का मिनट मिल रही है, आसान मीरान भाई को 10 मिनट मिल रही है। 10:35 हुए हैं, 45 मिनट पे आपको वापस ले लूंगा इंशाल्लाह, और आप 3 तौसीक साबित करें, वो बात है। लेकिन बात यहाँ ये नहीं हो रही थी, आपके सवाल का जवाब शेख इल्जामी तौर पे दे रहे थे। बात जो कही जा रही थी शेख, वो सीने पे हाथ बांधने की बात तो अधूरी रह गई ना। मैं उसकी तस्दीक कर देता हूँ। खुलासा ये आप वो कंप्लीट कर दो। मेरे कहने का मकसद ये है, हम देखिए हम इमाम हनीफा रहमतुल्लाह को मतून नहीं करते। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी पर कोई जरह मिलती है, उसको बुनियाद बना के किसी पर भी अटैक करना शुरू कर दोगे, तो फिर इमाम हनीफा रहमतुल्लाह कैसे बचेंगे उससे? हाँ, क्योंकि उन पर भी हर तरह की जरह मौजूद है, बहुत ही खतरनाक किस्म की जरह। मैं बस 5 मिनट में निकाल रहा हूँ हवाले, फिर आपको साबित करूंगा। जी मीरान भाई, जरा आप है ना, पहले ये मेन जो सवाल था ना उसके अंदर जवाब सुन लें, क्योंकि शेख इल्जामी तरीके से जवाब दे रहे थे, लेकिन मेन पॉइंट मिस ना हो। इल्जामी आप जवाब क्या नहीं, मैं कीजिए, आप साबित क्या करूंगा। कीजिए, जो नशरुल तहीफा किताब है ना, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह पर जितनी भी जरह हुई है, आपने सब कहा ना उसमें 3 लिखा से हुआ है, 35 साबित कर देना, उसमें मैं से 80 किसी साबित एक का कर जवाब। दूं। जी मैं भी साबित करता हूँ पूर्व की। ठीक है, आपको मैं होल्ड पे रख रहा हूँ, थोड़ा ये टॉपिक ऑन होल्ड है। जरा बात अधूरी हो गई, सब व्यूअर्स जरा सीने पे हाथ बांधने का जो मौजू हमने कई बार पहले भी डिस्कस किया है, उम्मीद करता हूँ आपने समझा होगा। शेख खुलासा ये है कि सिर्फ जरह होना काफी नहीं होता है, जरह का मोतबर होना जरूरी होता है। एक रावी पे जरह भी होती है। आम आदमी की जुबान में शेख अक्सर बताएं जरा, आम आदमी, आम लोग नहीं समझते हैं, आम लोगों की जुबान में आप क्या बोल रहे हैं बता दें। आप जब आम आदमी जो बात कर रहे हैं, नक्द कर रहे हैं, इतना तो समझ रहे हैं ना कि जरह के, इन्होंने जरह का लफ्ज इस्तेमाल किया। जरह का मतलब किसी रावी पे कोई ऐब बताया गया, कोई ऐब कि इस ऐब की वजह से उसकी रिवायत रद्द की नहीं जाएगी, मानी जाएगी, इस ऐब की वजह से नहीं मानी जाएगी। हाँ, तो बहुत कम ऐसे रावी मिलेंगे जिन पे कोई ऐब नहीं है, जिन पर कोई कलाम नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई नक्द नहीं है। रावियों पर दोनों तरह का नक्द होता है, कुछ उसको सिका कहते हैं, कुछ ज़ईफ कहते हैं, कुछ जरे करते हैं। उन सारे अकवाल को इकट्ठा करके एक रिजल्ट निकाला जाता है, एक नतीजा निकाला जाता है। तो मुअम्मल के बारे में सिर्फ ये एक तरफा बात कह देना कि जरे हुई है, ये इंसाफ की बात नहीं। एक तरफा, इसलिए मैंने बतौर मिसाल पेश किया कि एक तरफा बात करेंगे तो बड़ी दिक्कत में आएंगे, क्योंकि इमाम हनीफा रहमतुल्लाह के ताल्लुक से भी सारी चीजें मिलती हैं। तो वहां अगर आपका ये उसूल कहता है कि नहीं वहां सारी चीजें देखेंगे, तो वहां भी आपको देखना पड़ेगा। दूसरी बात इन्होंने कह दिया कि सीने पे हाथ बांधने के ताल्लुक से कोई रवायत मौजूद नहीं। अरे भाई, नाफ के नीचे हाथ बांधने के ताल्लुक से कोई सिंगल रवायत, हम सही ज़ईफ की तो बात में करेंगे, कोई एक सिंगल तो सही हो, मुस्नद हो, एग्जिस्ट ही नहीं करती, कि मौजूद ही नहीं है। जी वो भी दे देंगे। मैं आज नहीं कह रहा हूँ, मैं इससे पहले भी स्ट्रीम में कह चुका हूँ। मेरा एक लफ्ज सुनिएगा, कोई नाफ के नीचे हाथ बांधने के ताल्लुक से कोई भी मरफू, सरीह मरफू, मुस्नद रवायत मौजूद ही नहीं है, उसका कोई वजूद ही नहीं है किताब में। सही ज़ईफ तो बहुत दूर की बात है, लेकिन सीने पे हाथ बांधने वाले भाई एक आदत बदल ले, आप दरमियान में ना बात करें। मौजूद है, हाँ, सुनन नबी दाऊद में मौजूद है, सीने पे हाथ बांधने के ताल्लुक से मरफू रिवायतें मौजूद है। लेकिन नाफ के नीचे हाथ बांधने के ताल्लुक से मरफू रिवायत मतलब सरीह मरफू मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, जैसे हदीस है ना, सल्लु कमा राअयतुमूनी उसल्ली, उस तरह से नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। तो इस मेयार पर अगर हम देखें तो सिर्फ सीने पे हाथ बांधने वाली हदीस मिलती है, नाक के नीचे हाथ बांधने वाली हदीस ऐसी मौजूद ही नहीं। जो है वो क्या है, हम जानते हो क्या है, जो है वो सरीह मरफू नहीं है। आप बहुत कह सकते हैं कि हुक्मन मरफू है, यानी इसमें मिन सुन्ना, इस तरह की बातें उसमें मिलेंगी कि सुन्नत ये है, हाँ, कि यहाँ हाथ बांधना चाहिए, सहाबी का कौल है, सहाबी के हवाले से, नबी के हवाले से कोई सिंगल रवायत मौजूद नहीं है। इन लोगों ने इस कमी को पूरी करने के लिए हदीसें करने की कोशिश की है, लेकिन ये कामयाब नहीं हुई। इसकी पूरी डिटेल हमारी किताब अनवारुल बदर में मौजूद है। तो खुलासा ये है कि इन्होंने बड़े जो है बेबाकी से कह दिया कि सीने पे हाथ बांधने वाली हदीस नहीं, जबकि इसका उलट मामला है कि नाफ के नीचे हाथ बांधने वाली कोई भी सिंगल सरीह मरफू मुस्नद रवायत मौजूद ही नहीं। सही ज़ईफ तो दूर की बात है, जो मौजूद है वो साहबे का है, बहुत कह सकते हो। मेरी राय, आप टॉपिक पे आ जाएं। अबू हनीफा की जो आपने जरा बताई ना, बहुत सी वो साबित करें। चले मैं तौसीक साबित करता हूँ, फिर मोहम्मद बिन इस्माइल पे ही बात करेंगे।
آپ سنیے، معمل بن اسماعیل پر جو جرا ہے وہ بھی ثابت کریں گے، اور جو توثیق ہے وہ آپ ثابت کرنا، میں جرا ثابت کروں گا۔ دوسری بات، ابو حنیفہ کے نزدیک آپ نے کہا بہت سے محدثین، تو میں کہتا ہوں چلیں آپ ان پہ جرا ثابت دکھائیں، پھر میں ان کی توثیق 80-90 صحابہ سے محدثین سے ثابت دکھاتا ہوں، اور ائمہ نہیں اربعہ دیکھو، یعنی متقدمین میں سے بھی نہیں دکھاتا ہوں۔ آپ کس غلط فہمی میں ہیں؟ 80-90، ارے 80-90 ثابت ہونا چاہیے، گنانا، ہم گنتی نہیں جانتے، وہ ہاں، چیز میں ان کے سندن اقوال دکھاؤں ثابت گا، ہونی ان کے چاہیے۔ اقوال ہم دکھاؤں گا ان کی 80 کتابوں کہہ سے، رہے ہیں، جی ہم جی 80 ان نہیں کے کہہ رہے۔ اقوال ان کی وہ کتابوں سے چیز دکھاؤں گا نا شیخ۔ آپ نے معمل پر جو ہے جرح کی ہے، آپ کی ہو گئی تیاری؟ آپ اب نے 10 معمل منٹ پر چاہتے جرح ہیں کی آپ؟ ہے، ذرا اس کا ثبوت دے نا۔ نہیں، میں پہلے ٹھیک ہے، ابو حنیفہ پہ ایک بات آئی نا، پہلے وہ ابو ابو حنیفہ کی حنیفہ کا توثیق موضوع بات ثابت کرنا کرتا ہوں، چاہ پھر رہے ہیں، محمد لیکن بن ہوا اسماعیل کی بات ارے کرتا ہوں۔ ہم تو آپ کو پوری کتاب دے رہے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نشر الشفا پوری کتاب اس میں پورا صرف ساری جرح لکھی ہوئی ہے۔ حضرت کتاب کا بات نہیں ہو رہی یہاں، تو میں بھی کتاب کے حوالے دے سکتا ہوں۔ یہاں آپ نے یہ کہا نا تو کہ آپ آن پیش کیجیے نا، اسکرین تو پہ آپ نے اچھا کہا نا، آن ٹھیک ہے، اسکرین پر آپ ان کی جو ہے ان میں پہ بھی جرح اسکرین ثابت پہ کریں نا۔ دکھاؤں گا، میں بھی اسکرین پہ دکھاؤں گا، آپ دکھائیں ایک معاملے میں سائڈ پر، پہلے آپ دکھائیں ابو ذرا، حنیفہ کی آپ توثیق تیار ہیں ثابت میران شیخ کرتا بھائی؟ ہوں۔ توثیق ثابت، میں تھوڑا سا مجھے موقع چاہیے بولنے کا، کیونکہ بحث دوسری طرف چلی گئی ہے۔ بھائی آپ نے یہ کہا تھا نا کہ معمل بن اسماعیل پر اتنی ساری جرح ہے، تو شیخ کفایت نے کہا امام حنیفہ پہ بھی جرح ہے، تو اب توثیق کی بات کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ آپ نے صرف جرح کو دلیل بنایا تھا نا، تو شیخ نے کہا کہ وہ تو ابو حنیفہ پر بھی جرح ہے۔ آپ نے جو بات کہی تھی، شیخ نے تو اس کا ایک الزامی جواب دیا نا کہ صرف جرح ہونے سے کوئی چیز غلط نہیں ہو جاتی ہے، تو شیخ نے یہ کہا کہ وہ ثقہ ہے کہ نہیں ہے؟ شیخ نے تو صرف اتنا کہا کہ جرح تو ابو حنیفہ پر بھی ہے، تو آپ کی بات کا ایک الزامی جواب دیا گیا۔ آپ یہ تسلیم کرتے ہیں نا کہ امام حنیفہ پر جرح ہے؟ میران بھائی بات کرنے کا وقت ابھی ہے، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں پلیز، بتائیں۔ جی جی، آپ نے کہا نا مطلب جرا ہے، تو ایسے تو پھر کوئی بھی محدث نہیں بچے گا جس پہ جرا نہ ہوئی بھی ہو۔ تو ہر وہی تو کسی نے شیخ کسی کفایت بول رہے تھے، تو وہی تو شیخ نہیں کفایت نہیں بھی نہیں بول رہے تھے کہ صرف نہیں جرح، یہ کیوں بول رہے ہیں آپ؟ نہیں شیخ شیخ کفایت نہیں، یہی دیکھیں بول رہے تھے کہ شیخ کفایت یہی بول رہے تھے میرے کہ صرف جرح ہونے سے کیسے آپ یہ بولتی کہ حدیث ضعیف ہو جائے گی؟ جرح تو امام نہیں حنیفہ نہیں، پر بھی ہے، تو جب ایک بات جرح سنیں، ہوگی تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے مقابلے میں وہ، اس لیے بات دوسری سرکار طرف بھائی چلی گئی، بولنے دیں گے، بات اس لیے میں مجھے بیچ میں بولنے آیا دیں ہوں گے، نا کہ بات دوسری طرف مجھے چلی گئی، بولنے آپ دیں سے گے، شیخ کفایت ہی بات کریں گے، میں صرف جو ایک بات غلط رخ پہ جا رہی تھی وہ میں بتا رہا تھا کہ شیخ کفایت مجھے نے صرف بولنے اتنا دیں الزامی کہا تھا کہ جرح ہونے سے حدیث ضعیف کیسے ہو گئی؟ جرح تو امام حنیفہ پر بھی ہے، تو جب آپ نے نہیں نہیں کہا کہ نہیں اس کی توثیق بھی ہے، نہیں تو شیخ کفایت کا جواب آپ نے خود دے دیا کہ توثیق ہے، تو ایسے سنیے، محمد نہیں اسماعیل کی نہیں بھی سنیے توثیق ہے۔ سنیے 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 ارے سنیے میران بھائی ابھی آپ کو موقع دیں گے، بات آپ میں بیچ میرے میں خیال سے آپ نا، میں وہ بحث کو ایک نقطے پہ، میں بس اس نقطہ کوئی بات میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا میران اس بھائی، مسئلے پہ، میں بس یہ بتا رہا تھا نا سرکار کہ بھائی، بات دوسری رخ پہ جا رہی محدثین تھی، کے یہ اصول میں جناب جو کیا ہے نا ہے؟ گفتگو ان کی کو سن لیتے ہیں۔ دوسرے، تو محدثین کا اصول کیا ہے؟ محدثین کا اصول یہ ہے کہ زیادہ لوگ اگر ثقہ کریں تو توثیق ہو جائے گی، محدثین کا یہ اصول نہیں۔ اگر جرح، اور آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ 3 یہ دکھاؤ گے تو 100 ہم یہ دکھا دیں گے، یہ تو محدثین کا اصول نہیں ہے کہ جرح کم لوگ کرے توثیق زیادہ لوگ کرے تو راوی ثقہ ہو جاتا ہے، یہ محدثین کا اصول نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ محمد بن آپ یہ کیوں اسماعیل پہ بول تو رہے ہیں کہ اتنے زبردست لوگوں جرا نے ہے نا، جرح وہ کی تو ثابت زیادہ لوگوں نے توثیق کی؟ ارے میرے بھائی، تو کیا محدثین کا یہ اصول ہے کہ جرح کرنے والے زیادہ ہو، توثیق کرنے والے زیادہ ہو، جرح کرنے والے کم ہو تو راوی حدیث صحیح ہو جائے گی؟ یہ تو محدثین کا اصول نہیں ہے کہ گنا جائے گا کہ توثیق کرنے والے کتنے، جرح کرنے والے کتنے۔ اگر جرح اور توثیق دونوں میں اختلاف ہوگی تو دونوں کو ترجیح دینے کے لیے عدد نہیں دیکھا جاتا ہے، یہ محدثین کا اصول نہیں ہے کہ دیکھا جاتا ہے عدد، ایسا ہے محدثین کا اصول کی عدد دیکھا جائے گا؟ ہاں بولیے۔ جی جی، میں کال پہ بات کر رہا تھا، کیا کہہ رہے تھے بتائیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کیا محدثین کا یہ اصول ہے کہ جرح اور توثیق کرنے والے اگر ہو جائیں تو دونوں میں سے دیکھا جائے گا کہ زیادہ کون ہے، جرح کرنے والے زیادہ ہیں یا توثیق کرنے والے زیادہ ہیں، یہ دیکھا جائے گا، ایسا محدثین کا اصول ہے؟ یہ دیکھا جاتا ہے نا، محدثین میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کی توثیق زیادہ ہے، یہی دیکھا جائے گا نا۔ اگر مان لو ایک طرف ایک دو لوگ، تعداد ایک دیکھی دو جائے گی محدثین، توثیق کرنے والوں کی، توثیق کرنے والوں کی تعداد دیکھی جائے گی؟ کیوں نہیں دیکھی جائے گی؟ تعدادی توصل ہے۔ کہاں یہ اگر اصول کہاں پہ پڑھا ہے آپ نے؟ سنیے، محدثین کا اگر یہ ایک اصول جگہ کہاں پڑھا ہے آپ نے کہ تعداد دیکھی جائے گی؟ میری بات سنیں، امام حنیفہ پہ اگر 2-4 لوگ جرا کر رہے ہیں لیکن 80-90 لوگ ان کی ثقہ ثابت ہو رہی ہے، تو پھر ارے محدثین کا کیا میرے اصول بھائی، ہے؟ آپ نے یہ اصول کہاں پڑھا؟ حدیث کون سے اصول حدیث کی کتاب میں پڑھا ہے کہ ثقہ، توثیق اور جرح میں اگر اختلاف ہو جائے تو تعداد دیکھی جائے گی، تعدیل کرنے والوں کی اور جرح کرنے والوں کی؟ اصول حدیث کی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ؟ سن تو لیجیے، یہ اصول ہے، متقدمین کی رائے دیکھی جاتی ہے نا، ارے یہ تو متقدمین کس کی طرف ہے، اور تو جنہوں نے ان کی رائے میں یہ توثیق کے دیکھا لیے جاتا دی، ہے کہ جرح، متقدمین میں سے، میرے سنیے بھائی میری رائے بات میں، سنیں، متقدمین میں سے میں آپ سے محمد سوال کر رہا ہوں، اس کا بن جواب دیجیے، کس نے کہا یہ کہ
गिनती गिनी मेरी जाएगी बात कि सेगा तादील करने वाले ज्यादा हैं या जरा करने वाले ज्यादा हैं, उनकी गिनती देखी जाएगी, या ये देखा जाएगा कि जरा ज्यादा मुफस्सर है या तादील मुफस्सर है, ये देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा उसके अंदर? अगर जरा करने वाले कम हो लेकिन वो दलील की बुनियाद पर जरा कर रहे हो, उनकी जरा मुफस्सर हो, मुदल्लल हो, और तादील करने वाले अगर मुदल्लल ना हो लेकिन ज्यादा हो, तो जरा कबूल की जाएगी या तादील कबूल की जाएगी? देखिए बात सुनिए, आपने बोल लिया, अब मैं बोलूं। बोले। मोहम्मद बिन इस्माइल पे जो बात चल रही थी, तो मैंने ये कहा था कि बहुत से मुहद्दिसीन ने उनके ऊपर जो जिरा की है किस वो मैं पर, साबित कौन करूंगा। किस पर बात चल रही थी? मोहम्मद बिन इस्माइल, मोहम्मद बिन इस्माइल, मोहम्मद बिन इस्माइल, मोहम्मद बिन इस्माइल मोहम्मद अल बिन बुखारी। इस्माइल, अच्छा, नहीं मोहम्मद आप, बिन मैं बार बार इस्माइल, ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद। अच्छा मोहम्मद बोल रहे थे ना, इसलिए मुझे। हाँ जी, नहीं बोलिए। आपको कंफ्यूजन। हाँ, मोहम्मद बिन हम्म इस्माइल बोल रहा हूँ मैं। तो मैंने ये हम्म कहा था कि जो वाइल बिन हुजर की रिवायत पेश करी, मैं उसमें मोहम्मद बिन जो इस्माइल है उन पर बहुत जबरदस्त जिरा है, और वो रिवायत जो हम्म। है वो सही भी नहीं है। पहली बात तो जो रिवायत है वो सही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, भाई तो दूसरी जब चीज ये है आपने कि कहा था कि जरा है, तो शेख किफायत ने बोला वो तो इमाम हनीफा पर भी जरा है। नहीं, इमाम हनीफा सिर्फ का जरा साबित है थोड़ी करेंगे, ना मैं देखा साबित जाएगा। करूंगा। अरे नहीं, भाई मैंने जरा कहा मैं है, साबित कर दूंगा जरा ना। है, ये तो जरा है, ये बात साबित करना कि जरा है कि नहीं, आपको नहीं मालूम क्यों हनीफा पर जरा है? बिल्कुल दिखाए ना, साबित करें, मैं उनकी तस्दीक साबित करता हूँ चलो ठीक है। तौसीक। अरे भाई तौसीक की नहीं, बात ही नहीं हुई, सिर्फ बात इतनी कि जरा है कि नहीं है, तो जरा तो है ना। तौसीक जरा तो साबित होगी सबका कि है नहीं ना, तो साबित होगी, वो तो बात नहीं, मसला है। अगर तौसीक वाली ऐसा तो बात बहुत आप कर बात रहे है। हैं, तो शेख देखिए किफायत भी आप तो जरा वही कह बता, रहे हैं कि जरा होने से क्या होता है, उनकी तौसीक साबित है। जरा होने से मसला सुन, नहीं है, उनकी तौसीक साबित है। तो साबित करें ना, चलिए, तौसीक मेरे ख्याल से साबित मैंने करें। अपनी बात रख दी, बारकल्लाहु फीकुम। नहीं नहीं, साबित करें ना। मीरान भाई, दो तीन बातें आ गई नहीं यहाँ नहीं पे, दो बातें आ गई, गौर से सुने। देखिए मैं आपसे पॉइंट नहीं पॉइंट टू नहीं पॉइंट जी, पूछ रहा हूँ, तो जैद आप भाई बात बताएं सुनो, आपका मौक़िफ़ आपने क्या है। मैंने एक बात मीरान कही भाई, ना, तो इल्जाम जवाब से बात नहीं चलेगी। देखिए इतने बड़े लोग देख बात रहे तो हैं, आप सुना उसकी है। तौसीक साबित करें। बस सवाल ये है, हाँ मैं हाँ, क्या तौसीक आप साबित करें, करेंगे, 2 रिवायत मिनट सही साबित रुकाओ। करें। मैं आपको स्पेशल टाइम भी दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बात सुनो। देखो, आपने अभी ये कहा कि ऐसा करेंगे तो कोई भी नहीं बचेगा, यानी किसी के ऊपर भी जरा जो है, कोई जरा किसी के ऊपर होना, इससे वो बात साबित शुदा नहीं है, या वो रावी की बात नहीं ली जाएगी। देखना होगा कि तौसीक साबित है, कौन सी बात ज्यादा वजनदार है। आपने उसके अंदर ये बताया क्राइटेरिया कि जहां पे अच्छा ज्यादा हो, तादाद से देखिए तय मैं, करेंगे, आपने ये कहा। अच्छा सही मैं बात है ना? आपकी ही कालिम की, देखिए ये दो आपकी बातें, कालिम, देखो अभी सुनिए मुनाजरा सुनिए, मुनाजरा नहीं है, मैं, जैद मेरा काम क्या है ना, जैद जहां पे भाई, कोई जैद भाई, इख्तलाफ नहीं है वो इख्तलाफ को हल नहीं जैद करना, भाई, ताकि जो नहीं दोनों जैद सेम भाई, बात बोल रहे हैं तो बोलिए अरे जैद भाई, मैं ही कह रहा बोलो। हूँ, मैं आप ही के आलिम से, आप ही के घर से मोहम्मद बिन इस्माइल पर जो है जिरा दिखा मोहम्मद देता हूँ। बिन इस्माइल इमाम बुखारी का नाम है सर, नाम के मोहम्मद बिन आइडेंटिटी में इस्माइल फर्क बोल है। रहा हूँ मैं, ठीक है, मोहम्मद बिन इस्माइल बोल रहा मोमिल, हूँ। वो हाँ असल में आपकी मोमिल बिन, कनेक्टिविटी में ठीक है चलो। वो क्या लिखते हैं, अभी यहाँ पे गैर। सवाल क्या है कि सवाल ये है कि आपने इस बात को कबूल कर लिया ना कि जरा है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी सुन लीजिए आप 5 मिनट। हाँ, अहले हदीसों के एक मशहूर आलिम नासिरुद्दीन अलबानी, सीने पर हाथ अरे बांधने अभी वाली अपनी बात इस वहां हदीस पर दूसरी तरफ अपनी लेके चले गए यार, राय अपनी पेश बात। मैंने करते दो हैं बातें कि आपको उनकी सनद ज़ईफ है, क्योंकि मोहम्मद बिन इस्माइल का बेटा है, मोहम्मद जो इस्माइल का बेटा है वो अच्छा सहीउल पहले ये हिफ्ज है। बताओ, हाँ वो सब सब सवालों की जवाब है, और वो किताब में ऑलरेडी रिटन में है, मतलब ओरल बोलने की भी जरूरत नहीं है, हम जी लोगों ने जी ओरल भी लिया है। हाँ, तो कोई मसला नहीं है। बात यहाँ ये है, मेजर टेप सेम होना चाहिए ना, दो लोग नाप रहे हैं, दोनों की मेजर टेप अलग अलग होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना। तो नहीं, आपने मैं आप कहा ही का, जहां पे ज्यादा मिल जाएंगे, तादाद में ज्यादा, नहीं, डेमोक्रेसी मैं का रूल आप ही होता के है आलिम की, कि जहां आप जो ही के पार्टी को आलिम ज्यादा की वोट है। सीने पे हाथ बांधने की ना, अरे आप देखिए आगे की बात ये कर रहे हो, एक मिनट मीरान भाई, आप आगे की बात कर रहे हो, मैं आपसे बात ये कह रहा था कि जैद आप भाई, थोड़ा सा पीछे पहले मेजर टेप जैद की भाई, बात करो। एक मेजर जैद टेप भाई, सेम मैं कर लेते ना, पहले 1 मिनट चेक कर लेते ना। जैद भाई, आप सामने भाग जी क्यों रहे जी, हो? देखो मीरान मैं भाई, नहीं भाग टॉपिक रहा। से है ना, अगर आप बोलो कि नहीं मेरे आज ये टॉपिक पे स्टडी नहीं है, मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा, नहीं कोई नहीं बात नहीं नहीं, मैं जैद आपको भाई, ब्लेम बात नहीं सुनो, करूंगा। देखिए मैं बहुत बड़ी बात ही कह रहा हूँ। अगर कोई भी सीने पे हाथ बांधने की सही रिवायत सही सनद के साथ मिल जाए, हम अमल करने को तैयार हैं। ठीक है, पेश कर दे आप सही रिवायत जिससे मुहद्दिसीन ने कबूल करा हो, और वो हमें मुतकद्दिमीन में से दिखा दे, ठीक है, हम बांधने को तैयार हैं। ठीक है जी शेख किफायत, यहाँ पे दो बातें हैं जो आपने सुना, यहाँ पर आप आगे की बात करें जी। इन्होंने कहा कि मुतकद्दिमीन में से बता दें कि मुहद्दिसीन ने सही कहा, सही इब्न खुज़ैमा में हदीस है, इमाम इब्न खुज़ैमा मुतकद्दिमीन में से, उन्होंने जी सही कहा। भेजिए, ये शफ़ानी रहमतुल्लाह हवाला खामोश, मैं हवाला चेक बीच में करूंगा ना, हवाला बुखारी के इनको साथ खामोश कीजिए, मैं भी चेक इनको करता हूँ, बाहर कीजिए, सनद मेरा भी जवाब चेक होने करूंगा। दीजिए। जैद भाई इनको बाहर कीजिए, इनको बाहर कीजिए, मीरान भाई इनको आप पहले एक बाहर मिनट कीजिए, मेरा आपको, जवाब होने दीजिए।
इतनी देर खामोशी के बाद मैं एंट्री मारा हूं और फिर बीच में टोक रहे हो आप मुझको, बात नहीं करने दे रहे हो। नहीं तो आप बीच में उस पे ना हवाला लगाएंगे ना, बाहर मसला करो, ये बाहर है। करो, देते बाहर करो, अगर मुझसे जवाब लेना तुमको बाहर करो, ये कोई तरीका होता है यार? यानी आपने बोलते जा रहे हो, नहीं आप आपने बताने मौका की बस दो, यही आपकी ऑडियंस एक लाइन आपको में देख मुकम्मल नहीं हो रही, बीच में बोलना शुरू कर देते हो यार। देखिए बीच में बात ना करें, जब सामने वाला बात कर ले फिर आपको मैं मौका दूंगा ना, मैं आपको नहीं मौके तो से ये महरूम नहीं झूठ क्यों बोल करूंगा, रहे ये हैं मेरा बैठ वादा कर? है। मुझे सुनो, मेरा मैं आपको पूरा मौका दूंगा मेरा बात तो करने सवाल का। का जवाब इससे दे बाहर कीजिए, फिर आप बैठ कर इससे लीजिएगा, पहले इसके बाद भी फिर आप इससे बैठ कर पहले लीजिएगा। सरफराज भाई ने भी कहा था कि जो कुरान की जो है, मीरान भाई रुक जाओ अभी थोड़ा, शेख किफायत कुछ बात कर रहे थे ना, हम लोग बीच में आ गए ना, तो उनको फिनिश करने दीजिए, फिर आपको मैं मौका दूंगा, 2 मिनट रुक जाओ। और बीच में आप अगर आप करेंगे तो मैं आपको बैक स्टेज करूंगा, फिर से फ्रंट स्टेज लाऊंगा बार बार। हाँ, क्योंकि आप अगर अनम्यूट कर देते हैं, थोड़ा आप रुक जाइए, उनको बोल देने दीजिए ना, बीच में क्यों इंटरप्ट करेंगे किसी को भी। हाँ शेख बोलिए, आप अपना जवाब कंप्लीट करें जी। इन्होंने तो कहा बात कि करेंगे भाई तो बोलने को मुतकद्दिमीन में से, पुराने उलमा में से किसने सही कहा है वो बताइए। इमाम इब्न खुज़ैमा पुराने उलमा में से, उन्होंने इस रवायत को सही करार दिया। रही बात इन्होंने मोहम्मद बिन इस्माइल की, जरे क्या पेश की शेख अलबानी की। शेख अलबानी अइम्मे नाक़दीन में से, हम उनकी तकलीद करते हैं, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीद नहीं करते, शेख अलबानी की तकलीद करेंगे हम, अजीब बात है। और मोहम्मद बिन इस्माइल के बारे में इन्होंने कहा जरे, एक भी जरे पेश नहीं किया इन्होंने। मैं ये तौसीक आपके सामने पेश कर देता हूँ। इमाम इब्न मईन की अपनी किताब है तारीख इब्न मईन, सफ़ा नंबर 60 जिल्द नंबर 3, आप कहते हैं मोहम्मद बिन इस्माइल के बारे में सिक़ातुन, आप सिक़ा हैं। इमाम अली इब्न मदीनी रहमतुल्लाह ने भी इनसे बाकायदा रवायत ली है, और जबकि वो आप सिर्फ सिक़ा से रवायत करते हैं। इमाम इसहाक बिन रावे, इन्होंने आपके बारे में कहा कि काना सिक़तन, आप सिक़ा थे। इतना जो है, बल्कि इमाम अहमद रहमतुल्लाह ने भी इनसे रवायत ली है, और उनके बेटे कहते हैं कि काना अबी इदा रदिया इंसान व काना इंदहु सिक़तन हदसान हो, कि मेरे वालिद साहब उन्हीं से रवायत करते थे जिनको वो सिक़ा समझते थे। तो ये कुछ हवाले मैंने आपके सामने पेश कर दिए कि जिन्होंने मोहम्मद बिन इस्माइल को सिक़ा कहा है। इन हवालों के बरखिलाफ आप शेख अलबानी का कौल पेश करेंगे? तो मोहम्मद बिन इस्माइल पे जरह है, लेकिन तौसीक भी की गई ना, जैसे इमाम हनीफा रहमतुल्लाह के बारे में आप कहते हैं, उनके बारे में तो तौसीक साबित भी नहीं है, सिर्फ जरह ही साबित है। आप क़यामत की 3 नहीं साबित कर सकते, 80 तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो हदीस है सीने पे हाथ बांधने के ताल्लुक से, ये तो सरी हदीस है, मुस्नद है, मरफू है, और मुहद्दिसीन ने सही भी कहा है, सही इब्न खुज़ैमा में मौजूद है। इसके बरखिलाफ, यानी जो स्टेटस है इस रवायत का, इसके बरखिलाफ जो, अच्छा सिर्फ ये एक रवायत नहीं, मुस्नद में भी है, मुस्नद में दूसरी रवायत है, दूसरी सनद है, दूसरे साहबी से कई रवायतें, लेकिन इन रवायतों के बरखिलाफ जो नाफ के नीचे हाथ बांधने वाली हदीस है, उस रवायत के ज़ईफ होने पर उम्मत का इत्तेफाक है। ये इमाम नबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इसके ज़ौक़ पर उम्मत का इत्तेफाक है। उसमें एक रावी है अब्दुर्रहमान बिन इसहाक़ अल-वास्ती, उसके ज़ईफ होने पर इत्तेफाक है, इत्तेफाक है उसके ज़ईफ होने पर। ये जो रवायत है ना सईद इब्न खुज़ैमा की, इसमें मुअम्मल के ज़ईफ होने पर इत्तेफाक नहीं है, इख्तिलाफ है। उस इख्तिलाफ में हम तरजीह देंगे कि सही बात क्या है। लेकिन जो नाफ के नीचे हाथ बांधने वाली रवायत है अब्दुर्रहमान बिन इसहाक़ अल-वास्ती, वो जो रावी है ना, उसमें सिर्फ एक ही साइड की रवायतें मिलती हैं, और जो है मुहद्दिसीन के अक़वाल मिलते हैं कि वो ज़ईफ रावी है, उसकी ज़ौक़ पर इत्तेफाक है। अब ये रवायत उसके मुकाबले में क्या हैसियत रखती है? ना तो वो सरीह जो है मुस्नद है, ना सरीह मरफू है, वो जो सईद इब्न खुज़ैमा की हदीस मरफू है, सरीहन मरफू है, सरीह मरफू भी नहीं है। और सईद इब्न खुज़ैमा की हदीस सही है, इमाम इब्न खुज़ैमा सही कह रहे हैं, और इस हदीस को तो उम्मत में से किसी ने भी सही नहीं कहा। इन्होंने जो लास्ट में ये कहने की कोशिश की ना कि शेख अलबानी तुम्हारे ही आलिम, हाँ, अरे भाई, सीने पे हाथ बांधने के ताल्लुक से पूरी दुनिया में सबसे पहले जिसने किताब लिखी है वो एक हनफी आलिम है। तो इस तरह के हवाले हमारे पास भी भाई, इस तरह के हवाले फतहुल गफूर किसकी किताब है सीने पे हाथ बांधने के ताल्लुक से? हनफी आलिम की किताब है, हमारी किताब नहीं, अहले हदीस आलिम की किताब नहीं है। तो मोहम्मद हयात सिंधी कौन सी हनफी आलिम थे, उन्होंने किताब लिखी सीने पे हाथ बांधने के ताल्लुक से। पूरी दुनिया में सबसे पहले किताब अगर कोई लिख रहा है सीने पे हाथ बांधने के ताल्लुक से, हनफी दुनिया लिख रही है, अहनाफ लिख रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने मसला उछाला, अहले हदीस तो बाद में मैदान में आए, अहले हदीस अमल कर रहे थे, लेकिन इस मसले को लेके तसनीफ की दुनिया में, बहस की दुनिया में बाद में आए। पहले हनफियों ने शुरू किया, पहले इन लोगों ने लोगों को बताना शुरू किया कि सीने पे हाथ बांधना चाहिए, हदीस सही। तो आप शेख अलबानी का हवाला देते, उससे पहले अपने घर की खबर लो। तुम्हारे शेख अलबानी ने तो लिखा है कि ज़ईफ है, तुम्हारे घर वालों ने तो पूरा किताब लिख दिया है कि सही है। शेख अलबानी का भी मौक़िफ़ वाज़ेह करें, शेख अलबानी का भी मौक़िफ़ वाज़ेह शेख अलबानी रहमुल्लाह से बहुत अहम बात ज़ैद भाई ने कही कि शेख अलबानी रहमुल्लाह ने हदीस को ज़ईफ नहीं कहा, हदीस को सही कहा ना, कहा सनद में इस रावी पे कलाम किया, लेकिन कहा वल हदीस सही, पूरी बात उनकी पढ़ो ना। शेख अलबानी रहमुल्लाह ने हदीस को सही कहा, यानी सनद पे गर्च रावी पे कुछ कहा, लेकिन उन्होंने फाइनली जो उनका रिजल्ट है हदीस पे, जो उनका हुक्म है, वो सही कहा। इसको क्यों छुपा रहे हो? अगर शेख अलबानी को मानना है, आप कहते हो तुम्हारे आलिम से, हमारे आलिम से क्या साबित करो, हमारे आलिम ने तो सही कहा उसको, लेकिन तुम्हारे उलमा ने
तो रावी सनद को भी ज़ईफ़ कहा, हदीस जो सीने पे नाक के नीचे हाथ बांधने वाली हदीस है उसकी सनद को भी ज़ईफ़ कहा, मतन को भी ज़ईफ़ कहा, सबको ज़ईफ़ कहा। लेकिन और इसी तरह से सीने पे हाथ बांधने वाली जो राय तो सनद को भी सही कहा, मतन को भी सही कहा। लेकिन शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने सनद पर थोड़ी सी जरे की है, लेकिन फिर हदीस की सेहत पर वो आए हैं। बहरहाल ये वजाहत कर दिया इन्होंने, बीच में इन्होंने वजाहत कर दी है। मैं आया था किसी और काम के लिए, मैं चाहता हूँ कि इनको अगर बात करनी है अगली स्ट्रीम में आए, ये हमारा मौजू नहीं है, और जिसके लिए मैं आया था कुछ सवालात थे उस पर हम बात कर सकते हैं। सवाल जी शेख, मैं 5 मिनट बाद शुरू करूंगा, एक गेस्ट से हम बात कर लेंगे फिर शुरू करूंगा। अच्छा, यहाँ पे ये भाई जो थे यहाँ पर, मैं एक बात आपके सामने वाजे कर दूं कि उन्हें मैंने बैक स्टेज किया तो वो चले गए, लेकिन उन्हें एक बात समझनी चाहिए कि एक बात करें कि अदब में से उन लोग अगर पेन एंड पेपर हाथ में ले लेते हैं, शेख किफायत की क्या क्या बातों पे उन्हें एतराज है, पेन पेपर पे लिख देते हैं, फिर जब मैं उनको मौका देता तब वो आके बता देते। और मैं कह रहा हूं, मैं शेख किफायत को भी इजाजत नहीं देता कि उन्हें इंटरप्ट करे, यानी कि उन्हें मौका देता फिर शेख किफायत को मौका देता, इस तरह से एक अच्छा एजुकेटेड डिस्कशन होता है। मैं बीच में कभी नहीं अब वो बोलता, भाई गायब हो गए। हमारा मुखालिफ कोई भी हो मैं पूरा मौका देता हूँ, सुकून से सुनता हूँ, मैं बीच में नहीं बोलता। और मेरी एक कमजोरी है, बात भी उन्होंने वजह दूसरी तरफ लेके चले गए। शेख किफायत ने जो बात की थी वो सादा सी एक इल्जामी जवाब था कि भाई तुम ये कह रहे हो कि जरा है तो जरा तो इमाम पर भी है, तो वो बोल रहा है कि तो इमाम की तौसीक भी है, तो हम भी तो यही बोल रहे हैं ना कि तो मोहम्मद इस्माइल की भी तौसीक है, तो जरा तौसीक टकरा रही है तो ये देखो ना कि तौसीक गालिब हो रही कि नहीं हो रही है, ना ये कि देखो कि बस जरा है तो बस वो बात रही है। शेख हर मुकल्लिद का ना सही, हाँ बोलिए, बताएं शेख। हर मुकल्लिद के उसूल जो है ना हर मसले के हिसाब से तब्दील होते रहते हैं। जहाँ उसका अपना मसला होता है, हर मसले के साथ उसके उसूल तब्दील हो जाते हैं। तो ऐसे ही मामला, तो वो बिला वजह बहस दूसरी जानिब लेकर के जा रहे थे, फिर वो शिकायत करते हैं कि हम लोग इमाम हनीफा की तौहीन करते हैं। सही, शेख किफायत अवाम के लिए हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तौहीन नहीं करते, देखिए वो मैंने इल्जामी तौर पर जिक्र किया था, वरना हम इसके कायल नहीं कि इमाम हनीफा रहमतुल्लाह पर जरे पेश करें, बिला वजह उनको मतून करें। बिल्कुल हम मतून तो करते ही नहीं, लेकिन ये हमारी मजबूरी होती है। कभी कभी मजबूरी में समझाने के लिए हमें ये करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भाई अगर आप इस चीज को दलील बना रहे हो तो तुम्हारे पास भी इस तरह की चीजें हैं, तो इससे उनको बात समझ में आती है, इसलिए हम हवाला देते हैं। वरना इमाम हनीफा रहमतुल्लाह पे जरह करना ये हमारा मकसद नहीं। हाँ शेख, मैं चाहता हूं अब आवाम के लिए एक बात वाजे करें, क्योंकि उन्होंने आकर एक सवाल जो बात रखी कि ज्यादा लोग यहाँ है ज्यादा लोग वहां है, यानी कि जरह में ज्यादा लोग है कि तादील में ज्यादा अकवाल है, तो ये बात आप आवाम के लिए वाजे करें कि ये तादाद से जो तय कर रहे हैं ना, इतने लोग यहाँ इतने लोग वहां हैं। हाँ, दो बातें हैं। पहली बात ये कि जरह तादील में जब किसी रावी के सिका या ज़ईफ होने का जो उसका स्टेटस है वो तय किया जाता है, तो तादाद नहीं देखी जाती है, बल्कि नाक़दीन की क़ुव्वत और दर्जा देखा जाता है कि जो नक़द वाले हैं वो उनका स्टेटस क्या है, उनका दर्जा क्या है। जैसे मैं बार बार मेडिकल की मिसालें देता रहता हूँ कि अगर मेडिकल लाइन में आपको ऑपरेशन कराना है और कोई जो है स्पेशलिस्ट है जो है, तो उससे एमडी है, उससे बड़ी डिग्री है उसके पास, तो उससे अगर आप एक राय लेते हैं, उसकी एक राय की एक वजन होती है। लेकिन आप नीचे दर्जे के डॉक्टर की एमबीबीएस है या दूसरा कुछ है, तो वो 2-3 मिलके ना उस एक डॉक्टर के राय के बराबर उनकी राय होती है, समझ रहे हैं। तो एक आदमी किसी फन का माहिर है, उसका एक बड़ा मकाम है, तो उसका एक कौल कई कौल के बराबर होता है। तो ऐसे जरह तादील में से कोई पुराने आलिम है, बड़े नाक़िद हैं, वो उनकी अगर कोई बात है और फिर मुतअख़िरीन के 2-3 अक़वाल हैं, तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये नहीं देखा जाता है इस्लाम की जमहूरियत की अक्सर जिसकी तरफ वो बात सही होगी, ये कोई पैमाना ही नहीं है। अगर ये पैमाना है तो ये मुक़ल्लिदीन क्या इसको मानेंगे कि रफ़ुल यदैन करने के बारे में आप देखें कि अक्सरियत, उम्मत की अक्सरियत ये मानती है कि रफ़ुल यदैन करना चाहिए। सिर्फ हनफी जो है अइम्मा है वो कहते हैं कि रफ़ुल यदैन नहीं मानना चाहिए। जो मुज्तहिदीन की बात करें तो मुज्तहिदीन की अक्सरियत, जिनको ये लोग मुज्तहिद मानते हैं, मुक़ल्लिदीन की बात नहीं करते, ये लोग जिनको मुज्तहिद मानते हैं, उन मुज्तहिदीन में से अक्सरियत कहती है कि रफ़ुल यदैन करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह कहते हैं नहीं करना चाहिए। तो अक्सरियत की बात आप क्यों नहीं मानते? अगर अक्सरियत ही दलील है तो आप वहां पे मानिए। और यहाँ पे अगर अक्सरियत भी देखें आप, तो जिन उसूलों से ये लोग जो है अक्सरियत जरह की पेश करते हैं, अक्सरियत भी सिका की जो है सामने आ जाएगी अगर हम उनके उसूलों पर गिनेंगे तो बहरहाल ये अक्सरियत या अक़लियत नहीं देखी जाती, असल चीज देखा जाता है वजन, यानी दोनों तरफ के जो अक़वाल हैं उसको एकजा किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, देखा जाता है कि किस तरफ के अक़वाल वजनदार हैं, किस तरफ के अक़वाल माक़ूल हैं, वजनदार हैं और मुदल्लल हैं, और वो पूरे उसूल ज़ाब्ते पे खरे उतरते हैं, तो उनकी जो है तरजीह दी जाती है, और उसके बरअक्स जो अक़वाल है उनको मरजू करार दिया जाता है। जी
जज़ाक अल्लाह खैर। अच्छा, एक बात मैं सब लोगों को बता दूं कि देखो भाई, ये एक स्पेशल ऑफर है, और ऑफर ये है ना कि अगर हमारे मौकिफ के मुआफिक कोई शख्स नहीं आएगा ना, मतलब सॉरी, हमारे मौकिफ के मुखालिफ कोई शख्स आएगा तो मैं उसको स्पेशल टाइम अच्छा दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम लोग खुलकर डिस्कशन करें और दोनों तरफ की बातें में सही जो हक बात है वो वाजे हो जाए लोगों के लिए, सवालात की रोशनी में, एतराजात की रोशनी में। तो जैसा आपने देखा कि ये भाई के लिए मैं ऐसा नहीं था कि जल्दी जाओ शॉर्ट में, मैंने उनको वक्त दिया, तो ऐसा दूंगा मैं वक्त। मैं कह रहा हूँ ऑफर है यहाँ से, लेकिन हम चाहते हैं कि वो लोग आए जो हमारे मौकिफ के मुखालिफ हो, उनको हम खास मौका देंगे, खास उनका इकराम करेंगे। लेकिन आप दलाइल लेकर आए, पॉइंट टू पॉइंट बात करें, पॉइंट टू और पॉइंट सवाल एक जवाब और इंटरेस्टिंग हो साथ जी। में एक ऐलान मैं भी कर दूं कि इस स्ट्रीम में मैं भी सबको मौका देता हूं, कोई भी आके मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन मेरी दरखास्त ये है कि अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मेरी इस शर्त को याद रखें कि जब आप बोल रहे होंगे तो मैं नहीं बोलूंगा, और जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप बीच में नहीं बोलेंगे। इस शर्त पर अगर आपको बात करनी है तो मुझसे बात करें, वरना कोई भी मुझसे बात करने मत आए। ये मेरी लाजमी शर्त है। जब मैं बात करूंगा तो बीच में आप नहीं बोलेंगे। अगर मेरी इस शर्त पर आप पूरी उतरते हैं तो मुझसे बात कीजिए, वरना आप जाके किसी और से बात कीजिए। इन शर्तों के साथ ही मैं बात कर पाऊंगा, इससे हट के मैं बात नहीं कर पाऊंगा जी।